کیا اس دنیا میں ہمارے علاوہ بھی کوئی مخلوقات موجود ہیں؟ اور ایک مخلوق جس کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے، سب سے زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے، بڑے مباحث ہوتے ہیں اس کے حوالے سے، اور وہ ہیں جنات۔ کیا جنات واقعی اس دنیا میں موجود ہیں؟ اس حوالے سے مذہب کیا کہتا ہے اور اس حوالے سے سائنس کیا کہتی ہے؟ کیا جنات کی حقیقت کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ہمارے دماغ کی اختراع ہے؟ کیا جنات کہیں موجود ہوتے ہیں؟ کیا ان کی ایک دنیا اس کرہ ارض پر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو یہ رہتے کیسے ہیں؟ یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ کھاتے کیا ہیں؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے؟ اور ان کا انسان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جنات انسانوں کو متاثر کرتے ہیں، انسانوں کو فائدہ یا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ چلے کاٹتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جنات کو قابو کر کے بہت سارے فائدے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ان ساری باتوں کے پیچھے اصل حقیقت ہے کیا؟ کیا واقعی جنات کے ذریعے سب کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اور جنات بطور مخلوق موجود ہے یا یہ صرف کہانیاں ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے، بلکہ اس حقیقت تک پہنچیں گے۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ جنات ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور جنات کے حوالے سے بہت ساری باتیں مشہور ہیں۔ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ الہامی کتابوں میں جنات کا ذکر موجود ہے، لیکن کس انداز میں موجود ہے اور کیا کبھی کوئی انسان جنات سے ملا بھی؟ اور اگر ملا تو اسے کیا تجربہ حاصل ہوا یا اس کی کیا بات ہوئی؟ اسی طرح کی بہت ساری باتیں اور بہت سارے سوالات جو ہمارے دماغوں میں گردش کرتے ہیں، آج کے پروگرام میں ہم ان سوالات کے جوابات تک پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلے ملاحظہ کریں، ہماری آج کی ریسرچ دیکھیں تاکہ پتہ چل سکے کہ جنات اصل میں ہیں کون۔ میرا خیال یہ ہے کہ 90% لوگ جو ہے نا وہ ضعیف العقیدہ ہیں، اور 90% لوگوں کی زندگیوں میں ان کا عمل دخل ہے، اور یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں۔ صرف بندے کو مار نہیں سکتے، بیمار کر سکتے ہیں، نقصان کر سکتے ہیں، فائنینشلی نقصان، مطلب اس قسم کے نقصانات یہ کر لیتے ہیں۔ ان کا عمل دخل ہوتا ہے ہماری زندگی میں۔ تو کون ہے؟ کیا تھا نام تیرا؟ جعفر۔ جعفر کیا جن ہے؟ جنی ہے؟ جن۔ جعفر جن ہے؟ جعفر جن کی تو بڑی تعریف سنی ہے کہ بہت کربلا کا واقعہ سارا تم نے دیکھا ہے؟
जाफर जी, तकरीबन तेरी उम्र कितनी है? 20,000 साल। कितनी? 20,000। 20,000 साल। सारे ऐसे जो हमारे मदारिस मौजूद हैं, हमारे उलमा मौजूद हैं। आप लाहौर के अंदर भी ऐसी और बड़े जय्यद उलमा मौजूद हैं जिनके पास यहाँ मुजस्सम सूरत में इंसानी उनके तालिब इल्म की हैसियत से जिन्नात जो है पढ़ते रहे हैं। अच्छा। उनके कबीले के अंदर इसी तरह वो ताकत का भी एक तवाज़ुन और फ़र्क मौजूद है जिस तरह हम इंसानों के अंदर है कि ये तगड़ा है, ये कमज़ोर है, लेकिन जिन्नात वो गालिब आते हैं जो इल्म की बुनियाद पर भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। जिन्नात के बारे में जो चीज़ मैं आपको बताऊँ ना, कि इनकी आबादियाँ जो हैं, इनको पक्षी का नाम भी एक बोला जाता है, जो टर्म है। एक पक्षी जो है जिसमें हज़ारों की तादाद में जिन्नात हो सकते हैं या कुछ सैकड़ों की तादाद में हो सकते हैं, एक ख़ानदान के हैं, एक कबीले के हैं, एक मज़हब के हैं और एक मसलक के हैं। ये से ही ये बातें मैंने जो मालूम की, जो उनके साथ रहा, मैं उनसे सवाल चूँकि एक जर्नलिस्ट की हैसियत से किया करता था, जो मैं समझता था कि मुझे करने चाहिए, पूछने चाहिए, उसके मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले भी जिन्नात जो है ना वो मौजूद हैं, अलाट की गई हैं, रहते हैं जहाँ पर इंसानों की आबादियों के अंदर भी उनके लिहाज से मुख्तलिफ अहादीस से जो सबूत मिलता है। तो जहाँ भी निजासत की जगह हो, पलीदी की जगह हो, मसलन कूड़े क्रिकेट का ढेर है जहाँ भी, तो ये उनकी यानी गटरों और निजासत की जगह इनका डेरा होता है। और ऐसे ही हम्मामात जो हैं, हम्माम यानी जहाँ बंदा कपड़े उतारता है, ऐसी जगह ये चूँकि है शैतान और जिन्नियत इसमें है, इसी वजह से यानी हम्माम में नमाज़ पढ़ने से रोका गया। वो हम्माम जो पुराने ज़माने के होते थे, हमारे हम्माम तो और तरह के हैं, यानी वो एक हाल नुमा जिनमें दरमियान में गुस्ल खाने के बाहर भी खुश्क जगह होती थी, उस लिहाज से फिर हदीस शरीफ में मना किया गया और इसलिए कि वहाँ जिन्नात होते हैं। ऐसे जहाँ ऊँट बांधे जाएं, खुसूसी तौर पर ऊँटों के बांधने की जगह और गधे जहाँ बांधे जाएं, वो माव शैतान है, यानी ज़्यादा वहाँ पर जिन्नात होते हैं। इंसान की हालतों में यानी जिस वक़्त इंसान कपड़े उतारता है तो इस पर ज़्यादा ख़तरा होता है जिन का। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक़्त तुम क़ज़ाए हाजत के लिए कोई बंदा जाए, इज़ा अता अहदुकुमुल खला, बैतुल खला में या किसी जगह क़ज़ाए हाजत के लिए बैठे, फल यकुल अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस, कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ खुब्स और खबाइस से। तो चूँकि उस वक़्त भी यानी ये ख़तरा होता है कि वो इंसान की शर्मगाह के साथ खेलना शुरू ना कर दें, तो उससे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये दुआ मांगने का हुक्म है और ये जामे तिरमिज़ी, नसाई और इब्ने माजा में मौजूद है। तो इस तरह यानी दरख्तों के साए के नीचे इनके मस्कन पाए जाते हैं, नहरों दरियाओं के किनारों पर इनके मस्कन होते हैं और घरों में जहाँ हड्डियाँ फेंकी जाएं, हड्डियों पर ये ज़्यादा आते हैं, चूँकि हड्डियों के बारे में हदीस शरीफ में है कि इनके लिए उन पर गोश्त बन जाता है और इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मंजूर भी करवाया था कि ये हड्डियों को कोई इस्तिंजा वगैरह में इस्तेमाल ना करे, कि ये हमारी खुराक है। ऐसे ही यानी रंगों में से जो बिल्कुल सुर्ख रंग है उसके लिहाज से इनका ज़्यादा इनको पसंद है और आना जाना इनका उस वजह से हो सकता है। पहली चीज़, जिन्नात को हम देख नहीं सकते उनकी असल शक्ल में, इसीलिए मॉडर्न साइंस जो है ज़ाहिर है वो जिन्नात का इनकार करती है। आज के जितने भी लिबरल हैं और ये जो तरक्की पसंद लोग हैं वो आखिरत का भी इनकार करते हैं, एंजल्स का भी इनकार करते हैं, जिन्नात का भी इनकार करते हैं और आपसे पूछते हैं कि क्या आपने कभी देखे हैं? तो ज़रूरी नहीं अगर एक चीज़ देखी नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करती। ज़रूरी नहीं है कि अगर मॉडर्न साइंस अभी इस तरफ नहीं गई और इस हद तक तरक्की नहीं की मॉडर्न साइंस ने कि वो कोई ऐसी डिवाइस बना सके कि जिन्नात नज़र आने लगे, तो ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जिन बच्चे नहीं पैदा कर सकते,
अंडे देते हैं। हजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैंने देखा कि शैतान की बीवी ने अंडा दिया, फिर उससे बच्चा निकला, फिर उससे निकले, फिर दुनिया शयातीन से भर गई। चूँकि ये हदीस मौजूद है इसलिए हमें हतमी तौर पे पता है कि जिन बच्चे नहीं देते, इनको अंडे देते हैं, और इनको बच्चे पैदा करने के लिए किसी वजूद की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि इंसान को वह वजूद शक्ल में मिल गया है, मगर इनको जारी होने के लिए, औलाद के लिए वजूद की ज़रूरत पड़ती है, और किसी न किसी जानवर के पैकर में ढलकर या गाहे गाहे इन सेंचुरीज किसी इंसान के पैकर में ढलकर ये अपने बच्चों को पैदा करते। कुल जन्नात जो है ना उनमें नर मादा हैं, मुज़क्कर मुअन्नस हैं। इसीलिए हदीस पाक में जो दुआ सिखाई गई कि जब तुम जाओ तहारत खाना में तो पढ़ो अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूस वल खबाइस। खुबूस खबीस की जमा मर्दों के लिए, खबाइस जो खबीसात उनकी है कि जो जिन औरतें हैं, जो जिन मर्द हैं, उनके शर से हम पनाह मांगते हैं। तो उनमें बिल्कुल यही सिलसिला, औलाद भी होती है, उनकी नस्ल चलती है, जिस तरह पैदाइश होती है ये, और बिल्कुल इसी तरह जैसा कुरान कहता है हूरों के बारे में, लम यतनसुन्ना इंसान क़ब्ल वला जान, कि उनको ना किसी इंसान ने पहले उनसे जमा किया होगा, ना जिन्नों ने किया होगा। हाँ, तम्स जमा, इसलिए जिन्नात भी जमा करते हैं। हमारे ऐसे नामुराद भी हैं, अल्लाह पनाह दे, जो औरतों से करना शुरू कर देते हैं। जिन औरतों से इश्क कर रहे थे बड़ी मुसीबत बनती है, और वो उनके बिस्तर जो है उन पर इतना पानी होता है कि आदमी कहता तौबा तौबा तौबा, ये तौबा करनी चाहिए। और जिनसे मोहब्बत कर रहे थे वो तो जान ही नहीं छोड़ते, फिर आमिल भी बेबस हो जाते हैं। ये आग की मखलूक है शैतान, तो ये मतलब शैतान की औलाद है। जिन्हों को हम देख नहीं सकते उनकी हकीकी सूरत में किसी भी हाल में, लेकिन जिन हमको देख सकते हैं, इसलिए कि कुरान ने कहा वो तुम्हें ऐसी जगह से देख सकते हैं जहां तुम उन्हें नहीं देख सकते हो। वो कोई शक्ल लेते हैं तो सारे तबई कवानीन फिजिकल लॉ पे लागू हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक जिन ने कुत्ते की शक्ल ली और आपने कुत्ते की टांग तोड़ दी, तो जिन की टांग टूट गई, समझे आप? ऐसा नहीं हो सकता कि एक जिन कुत्ता बन गया और आपने अटैक करते आपके सामने धुआं बन के उड़ गया, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ने ये सलाहियत उसको दी ही नहीं। वो रूप ले सकता है, एक मुकाम में ट्रांसफर होकर हमारे पास आता है, और उसको उस मुकाम पे फिर जाना पड़ता है अपने रूप को ट्रांसफर करने के लिए, और जो हमारी नजरों के सामने वो काम नहीं कर सकता। तो अगर कोई जिन इंसान बन के आ गया तो अब मेरी और उसकी ताकत, अगर वो इंसान है तो ताकत अगर मैं उससे मजबूत हो तो हावी, जैसा कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु उस जिन की शक्ल पर हावी हो गए, वो इंसानी शक्ल में आता, लेकिन अबू हुरैरा उससे ताकतवर थे, पकड़ लिए ना उसको जाके, वो छू बोल के गायब नहीं हो गया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसको सलाहियत नहीं दी छू बोल के गायब होने की। बहुत सी बार होता है ना, मैंने जिनको पकड़ा जिन गायब होगा, हो ही नहीं सकता। वो एक मुकाम से शक्ल लेकर आते हैं और एक मुकाम पे जाकर शक्ल लेना पड़ती है। लिहाजा इसीलिए मैं कहता हूँ आम तौर से वो शक्लें नहीं लेते हैं, हाँ खास तौर से लेते हैं। क्यों? जब अल्लाह ने इतना प्रोटेक्टिव लेयर में रखा, उनको इतना महफूज रखा, तो अननेसेसरी रिस्क क्यों लेने का भाई दुनिया में आकर? अननेसेसरी रूप चेंज करके रिस्क क्यों लेने का दुनिया में आकर? इसलिए कि यहाँ तो बहुत अनप्रोटेक्टेड है वो। मिसाल के तौर पर एक जिन सांप बन के अगर आपने उसको मार दिया, डेथ, मर गया जिन। ऐसे वाक़यात मिलते हैं सहाबा के दौर के कि साहबी ने जो एक जिन को जो सांप की शक्ल में आया था मार दिया, फिर जिनों की एक जमात है और कहा आपने हमारे दोस्त को मार दिया, हमको खून बहा चाहिए, कत्ल के बदले कत्ल चाहिए। समझ रहे आप बात को? तो मर जाता है, उस पर फिजिकल लॉज लागू हो जाते हैं। तो लिहाजा मैं कहता हूँ उमूमन चेंजिंग है। बहुत से लोग अरे वो जिन कुत्ता बन के आ गया था, मेरी गाड़ी कुछ भाग रहा, बड़ा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा, और ये कर रहा और वो कर रहा। लेकिन आप अगर कुत्ते को पलट कर अगर जवाबी कार्रवाई कर दे तो वो उसको नुकसान भी, और कुत्ता क्या नुकसान पहुँचाएंगे आपको ज़्यादा काटने से अलावा। लेकिन आप तो इंसान होने के नाते बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं। ले सकता है लेकिन जनरली लेता नहीं। क्यों? तो उसको अल्लाह ने इतना महफूज रखा, तो क्यों रिस्क लेंगे? अगर कोई आपसे कहे कि भाई आपको इतना महफूज एक कपड़ा दिया जा रहा है, जेर बख्तर फला, आप पे कोई अटैक करे तो आप क्यों अननेसेसरी उसको उतार के रखेंगे? भाई इतना अगर मैं सेफ रह सकता हूँ तो वो ले सकते हैं, लेकिन उमूमन लेते नहीं है, इसलिए कि वो बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं उसके अंदर, बहुत महफूज रहते हैं उसके अंदर। अगर मैं मेडिकल साइंस के हवाले से बात करूं, और जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे, एक कॉल भी आपके पास आई कि लोगों पे मुख्तलिफ तरह से जिन का आना और वो जो सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं, या पेशेंट्स, हम तो उन्हें पेशेंट्स ही कहते हैं, कि वो क्लेम करते हैं कि हमारे ऊपर कोई जिन आया हुआ है, या उनकी आवाज़ बदल गई है, या उनकी हरकत बदल गई हैं। तो असल में एक डिसऑर्डर है
जिसे हम पोजेशन डिसऑर्डर भी कहते हैं या ट्रांसपोजेशन डिसऑर्डर कहते हैं, सम टाइम हम इसको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है? इसमें बेसिकली होता ये है कि वक्ती तौर पे टेम्परेरली जो शख्स है जिसके ऊपर ये कैफियत आती है वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी और जो उसकी सराउंडिंग्स होती हैं उससे वो अनअवेयर हो जाता है। Okay. और उसमें वो ये महसूस करने की कोशिश करता है कि मैं कोई और शख्सियत हूँ। और आम तौर पे इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट है क्योंकि ये कल्चरली भी डिफरेंट होता है और कल्चरली भी इसके लिए काफ़ी रिसर्च में भी इसके अंदर जो है ना वो पाई जाती है कि हम इसको किस तरह से इसके जो कंडीशंस हैं उसको हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जिन जो पाकिस्तान में किसी के ऊपर आता है वो और तरह से रिएक्ट कर रहा होता है, उसकी लैंग्वेज और होती है, उसकी बिहेवियर और होता है, उसकी डिमांड्स और होती हैं, उसकी नीड्स और होती हैं। इसी तरह से जो अगर यूएसए या यूके में बैठे हुए किसी शख्स पे आता है तो वो डिफरेंट है। ज़्यादातर जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर ये रिपोर्ट ज़्यादा होता है, एशियन कंट्रीज़ जो हैं। अच्छा, इसमें भी डिफरेंट मज़हब के साथ उन चीज़ों को अटैच किया जाता है। जो डिफरेंट मज़हब के लोग होते हैं वो उस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो समहाउ ये एक डिसऑर्डर है जो कि बाकी डिसऑर्डर से अलग है, मतलब हम इसे बिहेवियरल डिसऑर्डर कहते हैं। साइंस की रोशनी में जिन की हकीकत क्या है? वैसे तो ये कोई साइंसी सवाल नहीं है, लेकिन इससे बहुत लोगों को दिलचस्पी है। और अगर आप किसी बुक स्टोर में जाएं तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब काला जादू और उसका तोड़, इस जैसी किताबें हैं। कुछ रोज़ पहले मेरी नज़र इस किताब पर पड़ी, जिन एंड ह्यूमन सिकनेस। इसमें बहुत तफसील से बताया गया है कि कौन कौन से अमराज हैं जो जिन्नात की वजह से होते हैं और फिर इनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जाए और उस मर्ज का इलाज कैसे हो सकता है। मुझे क्या पता कि यहाँ दीवार है, दीवार के उस पार कोई जिन है कि नहीं, कोई भूत, कोई अफरियत। आई डोंट नो। मैं जाके पीछे से देख सकता हूँ, दरवाज़ा है वो, उस दरवाजे के पीछे से मैं जाके देख सकता हूँ कि जिन उधर छुपा हुआ है कि नहीं। लेकिन क्योंकि जिन वैसे भी आंखों से नज़र नहीं आता तो फिर मुझे नहीं नज़र आएगा। अब जिन्नात जब तक हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, अपने आलात के साथ मेजर ना कर सकें, देख ना सकें, महसूस ना कर सकें, तो उनका होना ना होना एक है। तो ये बात सोचने की है। लिहाजा आपको सिर्फ जो मादी असबाब हैं उनकी तरफ तवज्जो करना है। हमें इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है कि जिन होते हैं कि नहीं। भाई हो, कहाँ है वो? अगर वो कब्रिस्तानों के आसपास मंडलाते हैं और हम नहीं देख सकते हैं तो ये वहम से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये महज एक खौफ है जो हमें बचपन से डाला जाता है, डरो डरो डरो। हमें डराने के लिए, जैसे बचपन में मुझे बड़ा डर लगता था भऊ बिल्ले से। अब क्या चीज़ है, फर्जी चीज़ है। और मुझे बड़ी दिलचस्पी थी, बहुत शौक था कि मुझे भी अल्लाह दीन की अंगूठी मिल जाए। अंगूठी से मैं अंगूठी के जिन को बुलाऊंगा, फिर मैं उससे कहूँगा कि मुझे चिराग का जिन बुला दो, मुझे चिराग दो ताकि मैं चिराग के जिन को बुला सकूं वगैरह। तो ये बच्चों के लिए बातें हैं, जिनका दिल बहल जाता है, जो इस चीज़ से डरता है। नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम जिन्नात के हवाले से था और हमने जिन्नात के हवाले से बहुत सारी बातों को जाना, इनकी हकीकत को परखा और कोशिश की कि आपके जहनों में मौजूद तमाम सवालात का जवाब दिया जा सके। मुझे नहीं मालूम कि मैं कितना कामयाब हुआ, लेकिन हमारी हर प्रोग्राम में ये कोशिश होती है कि हम आपके दिमाग के उन गोशों में, जिन गोशों में से सोच पैदा होती है और वो सोच सवालात लेकर आती है, उन सवालात के जवाबात हम आपके सामने पेश करें और ताकि आपकी तशफ़ीह हो सके बहुत सारे सवालात के हवाले से। हम अपनी इस कोशिश में कितने कामयाब होते हैं ये मुझे आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपके दिमागों में कोई और टॉपिक है या किसी और मौजू के हवाले से आप समझना चाहते हैं तो वो भी अपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह उस मौजू के ऊपर भी प्रोग्राम करूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।